We are discussing about the relation between Ka and Kb and pKa and pKb. Actually, K is the dissociation constant of acid and Kb is the dissociation constant of base. So, to relate each other, we will consider a acid and its dissociation and a base and its dissociation. तो हम ऐसा मान लेते हैं, suppose we have an acid. Let HX is a weak acid which dissociate as follow. तो हमारे पास में HX एक weak acid है. Why I have considered it as a acid? Because it has H plus ion. It can release H plus ion. Okay, so that's why it is considered to be acid. So when it dissociates, suppose we have HX, it's a type of weak acid, and as it is a weak acid, so it will dissociate into H plus ion and X negative ion. And for this dissociation, we can obtain a constant. That is Ka equals to H plus ion concentration and X minus concentration and then HX. It can be written as equation first. Okay. So do you remember Bronsted-Lowry theory? आपने पढ़ा था Bronsted-Lowry का प्रिंसिपल या थ्योरी पढ़ी थी. उसमें आपने पढ़ा था कि अगर कोई एसिड H प्लस को रिलीज कर देता है तो H प्लस को रिलीज करने के बाद में जो आपके पास नेगेटिव आयन बचता है दैट इज कॉन्जुगेटेड बेस. तो बिल्कुल, तो ये आपके पास में कॉन्जुगेट बेस है. दिस इज कॉन्जुगेट बेस. ओके, सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस. और कॉन्जुगेट बेस वो होता है जिसमें वापस से H प्लस को गेन करने की टेंडेंसी होती है. ठीक है, अब अगर ये कॉन्जुगेटेड बेस जो है X माइनस, ठीक है, दिस इज बेस. ब्रांस्टेड-लोरी बेस भी कह सकते हो इसको, आप इसको ब्रांस्टेड-लोरी बेस. इट इज अ ब्रांस्टेड-लोरी बेस. तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं HOH, so what will happen? This base will extract H plus ion from water. वाटर से H plus ion को ले सकता है, ठीक है, and after getting H plus ion it will again change into HX. तो वापस से ये HX के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा and it will release OH minus ion. तो ये सॉल्यूशन में OH minus ion को रिलीज करेगा. ठीक है, so for it we can write Kb is the dissociation constant for base. ये बेस के लिए dissociation constant हो गया. So it can be written as HX and OH negative. ठीक है, and upon में आप ये लिख सकते हो आपके पास जो नेगेटिव आ रहा है दैट इज X माइनस नेगेटिव. एक्चुअली यहां पर वाटर भी है, समझना बेटा एक बार, यहां पर वाटर भी है बट वाटर को आप कांस्टेंट ले सकते हैं. If you take water as a constant, then you can write it like this: H2O and HX, OH minus and then X minus. और फिर यहां पर इसके लिए Kb आप लिख सकते हैं इस तरह से, HX and OH negative upon X minus. It can be written as, and let me write it equation second. ठीक है, so let's say this is equation first and this is equation second. Okay, if using equation first and second I multiply them, अगर इनको multiply करता हूं, देखो क्या होगा. Let's see, from equation first and second, using equation first and second we can write it like this: Ka into Kb. This is the left hand side of equation. And what is the right hand side? Right hand side is H plus ion and X minus ion upon में HX multiplied by, then this is the right side of dissociation constant of base, and this is OH negative upon and X minus. Okay, so here HX will be cancelled out by HX
x माइनस विल बी कैंसिल आउट बाई एच एक्स, इस तरह से किया जा सकता है इसको, ठीक है। एंड आफ्टर दिस व्हाट इज रिमेनिंग, के ए इंटू के बी इक्वल्स टू H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस, ठीक है। एंड वी नो दैट जस्ट अ मिनट बेटा, आई विल टेक योर क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको आप आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, विच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, ओके। एंड इट इज इक्वल्स टू KW, सो KA इंटू KB इक्वल्स टू KW, इट इज इक्वल्स टू KW, इसको KW के इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है। सो यहां पर एक रिलेशन आ गया है हमारे पास, वी हैव गॉट अ रिलेशन बिटवीन KA एंड KB, दैट द प्रोडक्ट ऑफ dissociation constant of acid and dissociation constant of base is equals to ionic product of water। तो ये वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अब बोलिए बेटा क्या कह रहे थे आप, यस कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं जोड़ा नहीं है, लिसन लिसन, जोड़ा नहीं है बेटा हमने, हम तो ये बता रहे हैं कि जो x माइनस ये कॉन्जुगेटेड बेस आया है। अब कॉन्जुगेटेड बेस की नेचर क्या होता है, इट हैज टेंडेंसी टू गेन H प्लस आयन, H प्लस आयन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में से ये OH को OH को नहीं लेगा, H प्लस को लेगा, तो इसने H प्लस को गेन किया है, दैट्स व्हाई इट हैज चेंज इनटू HX, और जो OH बच गया उसको मैंने यहाँ रिलीज कर दिया है, ठीक है ना। OH तो नहीं लिया है इसने, क्या है H प्लस को गेन किया है, ओके। फिर मैंने इसके लिए इक्वेशन यहाँ फ्रेम की है, ये इक्वेशन आ गई है जहां KB की वैल्यू अपन ने लिख दी है, देन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने अभी, हाँ बोलिए बेटा, यस यस बेटा, एक्चुअली क्या होता है जहां हम बात कर रहे हैं वीक एसिड या वीक बेस की, ठीक है, हमने बिगनिंग के अंदर कंसीडर किया था कि इनको हमने वीक एसिड और वीक बेस कंसीडर किया है। तो एक्चुअली में जब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने पर वाटर की कंसंट्रेशन को ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। मोस्टली जो कंसंट्रेशन चेंज होती है वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, बट वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो सेम ही रहती है, क्योंकि इनका डिसोसिएशन बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसको कांस्टेंट लेकर के हमने बाहर यहाँ पर KB बना दिया है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है उसके अंदर, ओके। सो अब यहां पर मेरी बात को समझे आप कि KA और KB के बीच में रिलेशन तो हमने स्टैब्लिश कर दिया है, ठीक है, बट वी कैन स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन pKa एंड pKb, जो मैंने ऊपर लिखा था, pKa एंड pKb में भी हम रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक बार ये ऊपर वाला मैटर रफ कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, यस देखिए, तो अभी हमने जो रिलेशन इसमें स्टैब्लिश किया है दैट इज KA इंटू KB इक्वल्स टू KW, दिस इज द न्यू रिलेशन, ठीक है। अब यहां पर एक चीज जो हमें समझने वाली है, आपने पढ़ा था कि जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होते हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप pH की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ को, और इसी तरह से OH की स्ट्रेंथ को आप POH की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, तो वैसे ही हमारे पास जो KA और KB है इनको भी आप pKa और pKb की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला आप यूज में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर pKa की बात करता हूं, तो pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग KA, यानी KA का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है दैट इज कॉल्ड pKa। सिमिलरली द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB इज कॉल्ड pKb, उसको आप pKb बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर W के लिए लेते हैं, pKw इक्वल्स टू, हाँ एक बार, ओके ओके, pKw, बेटा मेरा कहने का मतलब है एक्चुअली P पोटेंश से लिया गया है एंड P मीन्स पोटेंश या पावर। तो अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर एक्सप्लेन करना है किसी एसिड की पावर को कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसे हम P के रेफरेंस में यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा P की वैल्यू मतलब pH की वैल्यू कम होती है हम कहते हैं उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना POH की वैल्यू कम होती है हम कहते हैं उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सिमिलरली
हम लोग Ka और Kb जो होता है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, उसको भी आप pKa और pKb की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने एसिड H प्लस आइंस के लिए क्या देखा था कि व्हाट इज pH, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो सिमिलरली व्हाट इज pKa, pKa इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, pKb is negative logarithm of Kb, pKw is the negative logarithm of Kw, ठीक है, इस तरह से बोला जा सकता है। तो यहां इनको अगर मैं रिप्लेस करता हूं इससे, तो देखो क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटर्न एज, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप माइनस लॉग ले लो। तो अगर दोनों तरफ माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, तो यहां माइनस लॉग Ka डॉट Kb मतलब मल्टीप्लाई Kb इक्वल्स टू माइनस लॉग Kw लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। फिर एक स्टेप में और सॉल्व करें इसे, देखिए, फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग Ka प्लस देन माइनस लॉग Kb इक्वल्स टू माइनस लॉग Kw। अब यहां एक हमने क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी यूज में ली है, और वो आइडेंटिटी क्या है बेटा, देखो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि log A इंटू बी इक्वल्स टू log A प्लस log B होता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज में ली है। तो यहां log Ka इंटू Kb है, तो इट विल बिकम log Ka प्लस log Kb, और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव को मैंने अलग से शो किया है, ठीक है। अब माइनस लॉग Ka किसके इक्वल है, देखो माइनस लॉग Ka इक्वल्स टू pKa, इट कैन बी रिटर्न एज pKa प्लस माइनस लॉग Kb कैन बी रिटर्न एज pKb, इट कैन बी रिटर्न एज pKb, एंड माइनस लॉग Kw कैन बी रिटर्न एज pKw, इसको आप pKw कह सकते हैं। तो ये एक नया रिलेशन और आ गया है हमारे पास में कि pKa, pKb एंड pKw, ठीक है। एक्चुअली ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड पावर की फॉर्म में है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस पावर की फॉर्म में है, ठीक है, और ये भी पावर की फॉर्म में। अब एक चीज और समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि आपने ये फाइंड किया था, यहां पर कुछ सिंपल से अपन रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ दो रिलेशन देख लिए, एक तो ये वाला रिलेशन देख लिया हमने Ka Kb के बीच में, और एक Pka Pkb के बीच में देख लिया, ठीक है। तो एक बार इसको उठा रहा हूं मैं, तो मैं यहां ले रहा हूं Ka इंटू Kb इक्वल्स टू Kw, और डू यू रिमेंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kw एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो Kw की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, ओके। सो Ka इंटू Kb इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 आता है, ठीक है। तो यानी ये रिलेशन भी लिखा जा सकता है। बट अगर मान लीजिए मैं यहां पर लॉग के साथ इसको यूज में लेता हूं, जैसे यहां माइनस लॉग Kw लिखा था बेटा, हमने क्या बोला, Pkw क्या होता है, Pkw होता है माइनस लॉग Kw, ठीक है। तो अब अगर मैं Kw की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखता हूं माइनस लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, और इसको सॉल्व करता हूं तो 14 वैल्यू आती है Pkw की। तो इसका मतलब यह है कि यहां अगर मैं Pkw की फॉर्म में लिखना चाहूं इसको, तो ऐसे लिख सकता हूं Pka प्लस Pkb इक्वल्स टू 14। तो ये रिलेशन भी हम ध्यान रख सकते हैं, कि Pka और Pkb इन दोनों का जो सम होता है इट इज इक्वल्स टू 14, बट द प्रोडक्ट ऑफ Ka एंड Kb इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, ठीक है। ये बेटा ऐसी चीजें कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिए आप। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखो यहां पर जो समझने वाली है हमें, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं, और एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं इसके अंदर, दैट इज हमने कहा था कि अगर आपके पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं pH की टर्म्स में बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि अगर pH की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जहां एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज होना बताता है। सिमिलरली अगर आपके पास Ka की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्चुअली Ka क्या है,
Ka is the dissociation constant of acid. If value of Ka increases, obviously greater number of H plus ion will produce. ठीक है ना, अब Ka डिसोसिएशन बढ़ेगा तो H प्लस आयन ज्यादा बनेंगे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ने का मतलब इसकी वैल्यू बढ़ना, ठीक है, तो एसिडिक नेचर बढ़ना। और अगर pKa की वैल्यू अपन देखते हैं pKa, तो इट इज जस्ट अपोजिट, क्योंकि pKa pH के ही तो इक्वल होता है, क्योंकि यहां आप देखो pKa pKb इक्वल टू 14, और हमें पता है pH प्लस POH इक्वल्स भी कितना होता है, 14 होता है। तो सेम ही चीज तो इसमें एप्लीकेबल है हमारे पास में, ठीक है ना, सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। तो मैं pKa को pH और pKb को POH बोल सकता हूं, ठीक है ना, इट कैन बी रिटन एज, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो जस्ट ए मिनट, तो थोड़ा मैं सही से लगा लूं। ओके, यस, सो दिस इज द, ये क्या बताएगा, अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही है तो भी हम कहेंगे कि एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। अब जरा OH की बात करते हैं, ठीक है। सपोज इफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स POH कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग, ठीक है। और कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग। और सिमिलरली OH को आप क्या लिख सकते हैं, Kb से शो कर सकते हैं। Kb क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर Kb की वैल्यू ग्रेटर है, दैट मीन्स ग्रेटर नंबर ऑफ OH आयन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो इन दैट केस इफ वैल्यू ऑफ Kb इंक्रीजेस, obviously the value of pKb will decrease and it will also increase the basic nature। तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है ना। तो कभी कभी ना इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आप तो यूं सोच के चले, H प्लस आयन कंसंट्रेशन और Ka एक ही चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और pH और pKa एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दूसरा वाला अपने पास में है, ठीक है, दैट इज OH एंड Kb ये सेम है, और POH और PKb सेम है। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो इसको रफ करो। बेटा वैसे कल हमने इस चीज को स्टडी किया था, मैं आपको फिर भी बता देता हूं कैसे होगी। जैसे एक चीज सुने आप ध्यान से, हम ये कह रहे हैं कि POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब जरा समझना, तो यहां पर ये साइन जो लगा हुआ है बेटा, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो, यस, लिसन केयरफुली। सो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर नेगेटिव साइन है बेटा, तो अगर मैं यहां पर OH की वैल्यू को जितना बढ़ाता जाऊंगा, समझ रहे मेरी बात को, OH की वैल्यू को जितना इंक्रीज करता जाऊंगा उतना ही POH की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यानी ग्रेटर OH के लिए POH लेस ही होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ में है। अगर ये नेगेटिव साइन नहीं होता तो अपोजिट होता, यस, क्योंकि इसको अपन यूं भी तो लिख सकते हैं बेटा। वैसे तो करा दिया है काफी, बट एक चीज है, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और मैं इसको आज अपलोड कर दूंगा, तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने जैसे नहीं, हाँ, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, यू विल गेट द वीडियो ऑन यूट्यूब, ओके, ठीक है। तो POH इक्वल टू 1 अपॉन लॉग OH हो जाएगा, फिर नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो आप देखो दोनों में रिलेशन क्या है, कि अगर OH इंक्रीज होता है तो POH डिक्रीज होगा, POH डिक्रीज होगा तो OH इंक्रीज होगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक दूसरे के एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गॉट इट। पीएच में वापस बोलो बेटा, क्या कह रहे हैं, पीएच में हाँ बिल्कुल बेटा, एक्चुअली नहीं, वो नहीं समझे तुम इस चीज, मैं बताता हूँ, देखो तुम्हें, हमारे पास जो पीएच स्केल होता है, लेट मी शो यू। सपोज दिस इज द पीएच स्केल, दिस इज 7.0, ओके, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज सपोज 13, ठीक है। यहां पर ये आपके पास पीएच की वैल्यू है, या पीओएच ले लेते हैं हम लोग, चलो पीओएच को कंसीडर कर लेते हैं। पीओएच क्या, अब मैं पीओएच को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, और ये ब्रैकेट नहीं आएगा, और यहां मैं लिख रहा हूं 6,
3 2 एंड 1। ठीक है, अब इस चीज को समझिए आप, ये पीओएच की वैल्यू है। अब अगर मुझे ओएच आयन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहां पर ओएच आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻13, 10⁻11, 10⁻10, 10⁻9, 10⁻7, ठीक है, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻2 एंड 10⁻1। अब इस चीज को ध्यान से समझें, ठीक है, कि आप देखो पीओएच की वैल्यू, पीओएच की वैल्यू की बात हो, पीएच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पीओएच की बात कर रहा हूं ना। तो पीओएच की वैल्यू जितनी स्मॉलर है, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू 6 आ रही है, 3 आ रही है, तो वहां पर ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि आप जब नीचे जा रहे हो तो आप देखो ओएच की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ में ये नेगेटिव वाला चक्कर है, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव वैल्यू देखो जितनी आपको बड़ी दिख रही है, -9, मतलब सबसे ग्रेटर वैल्यू है आपके पास 10⁻1, उससे छोटी वैल्यू है 10⁻2, उससे भी स्मॉलर है 10⁻3, देन मोर स्मॉलर 10⁻6। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो ये OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और नीचे इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो दैट्स वाई जो पीओएच की वैल्यू है, ये जो छोटी वैल्यू दिख रही है, वो पीओएच की वैल्यू को बता रहा है कि वो उसमें OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ज्यादा बेसिक है। तो इन केसेस के अंदर ये बेसिक होगा, इन केसेस के अंदर बेसिक होगा, ठीक है, दिस इज बेसिक। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पीओएच की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, बट आपके पास OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर होनी चाहिए, ये ग्रेटर हो रही है ना। यहाँ कंफ्यूज बच्चे क्या सोचते हैं कि वैल्यू -7, -6, -3 घट रही है, बट इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है, यस। चलिए, हाँ बोलो बेटा। नहीं बेटा, ये अच्छा यहाँ पर, यहाँ कह रहे हो आप बेटा, ये जो वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं ये पीओएच की वैल्यू लिख रहे हैं, सॉरी OH माइनस आयन की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन है। एसिडिक कब होता? जब मैं यहाँ OH को नहीं लेता, मैं यहाँ पर लेता कि ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन है और यहाँ पर पीएच की वैल्यू, ये जो है ये पीएच को शो कर रहा है, तब फिर मैं ऐसे बोल सकता था कि जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो एसिडिक होता है, और कंसंट्रेशन H प्लस आयन की ये इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी तो फिर वो एसिडिक होगा, क्योंकि एक्चुअली वो नीचे की तरफ जाते हैं तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट पीएच डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, गॉट इट। और ओके, OH के केस में वो अपोजिट हो जाएगा उसका, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगी, एक दो अपन एग्जांपल लेते हैं इसके, है ना। लेट्स सी सम एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन के लिए बताया गया है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻5, ठीक है, और आपको कहा कि फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड पीएच, फाइंड पीएच फाइंड करें, पीओएच फाइंड करें, ठीक है, एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ये फाइंड करें, एंड नेचर फाइंड करें, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, ये फाइंड करना है। ये चार चीजें बतानी है, ठीक है। हमें केवल एक ही गिवन वैल्यू दी है, दैट इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻5। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज pH equals to minus log H plus ion concentration. This is the formula. We have already discussed this formula. So अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो using this value, using this formula we can find the pH. तो pH को फाइंड करते हैं, तो pH equals to minus log और H plus ion concentration रखो 10⁻⁻5, ठीक है, then pH will come out to be -5, then pH will be 5, तो pH 5 आ रहा है, and we know that pH 5 आ रहा है, that means it is less than 7, less than 7 से कम ही तो है, और हम 10th में ही पढ़ चुके हैं कि अगर pH 7 से कम है
ठीक है, तो बेसिक नेचर कैसा होता है, एसिडिक, एसिडिक नेचर होगा इसका। ठीक है, अब ये तो केवल हमारे पास पीएच आया है। अब देखो आपको फाइंड करना है पीओएच, तो हमें पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। तो पीएच आपके पास में आ गया 5 प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। देन पीओएच कितना हो जाएगा बेटा, 14 माइनस 5, देन पीओएच विल बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, और पीओएच अगर 9 आ रहा है तो बेसिक तो वही, मतलब सॉल्यूशन तो वही है, तो अभी भी रहेगा तो ये कैसा ही, एसिडिक ही रहेगा। तो अब एक चीज आप कंपेयर कर सकते हैं। आप देखो जब पीओएच 7 से सॉरी पीओएच ग्रेटर होता है और पीएच की वैल्यू लेस होती है 7 से, तो उस कंडीशन में नेचर कैसा होता है उसका, एसिडिक होता है। इसके लिए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे वापस वही फॉर्मूला यूज में ले सकते हो आप कि पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, सॉरी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, इस तरह से। तो यहां से हम देख सकते हैं, तो आपके पास पीओएच की वैल्यू 9 आ रही है, इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस आयन, और जब ये कंसंट्रेशन निकालेंगे OH माइनस आयन, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 आ जाएगा। तो अब 10 रेज़ टू पावर माइनस जो आपके पास में आया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है, ये इसको और इसको कंपेयर करो। देखो ये वैल्यू जो आपके पास थी H प्लस आयन, आप इसको कंपेयर करो, तो आप कंपेयर करने पर देख पा रहे हैं कि मुझे बताओ बेटा H प्लस आयन की जो वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 ग्रेटर है या 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर, माइनस 5 ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OH माइनस आयन की कंपैरिजन में कौन से आयन ज्यादा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, और किसी सॉल्यूशन में जब H प्लस आयन ज्यादा होते हैं तो वो एसिडिक होता है। ठीक है ना, और इसी का अगर अपोजिट होता, अगर इसका अपोजिट कर देता, मैं इसको यूं कर देता कि OH माइनस आयन जो है ये हो जाता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, और H प्लस आयन को मैं कर देता यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, और आपसे पूछता कि अब बताओ कौन सी वैल्यू ग्रेटर है बेटा। तो अब OH माइनस आयन ग्रेटर है, क्योंकि ये 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर वैल्यू देन दिस वन। ठीक है, तो फिर हम बोलते कि नेचर कैसा हो जाता सॉल्यूशन का, बेसिक, क्योंकि उसमें OH की कंसंट्रेशन ज्यादा होती। ठीक है, हैव यू गॉट द आइडिया। ठीक है बेटा, ओके। इसको देखो आप जो थ्योरी लगा रहे हो ना बेटा, वो आप एसिडिक नेचर को फाइंड करने वाली थ्योरी को आप बेसिक नेचर पे लगा रहे हो। मैं इसको एक समरी के अंदर बता देता हूँ, इसको रफ करके एक सिंपल सी समरी ले लेते हैं अपन, है ना, तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप ये देखो इसमें कि इफ pH इज ग्रेटर देन, सॉरी pH इज लेस देन 7, ठीक है, अगर pH 7 से कम हुआ तो डेफिनेटली pOH क्या होगा, 7 से ग्रेटर होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें पता है दोनों का सम कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। और अगर आपके पास, इसका अपोजिट करो, pH की वैल्यू अगर आपके पास लेस ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, तो pOH की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इट इज लेस देन 7 होगी, और उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सिंपल सा थ्योरी है। ठीक है भाई, हमें यह पता है कि अगर, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14 होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके पास pH की वैल्यू जो है, ओके यस बेटा बोलिए, यस, हम्म, देखो, हाँ, लेकिन बेटा अभी अपने बुक्स के अंदर वो नहीं है, वो केवल कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर है, आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है कि वाटर कांस्टेंट को यूज करना वहां पर, अपने इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा वो नहीं किया, फिर अभी ज्यादा पजल्ड हो जाएंगे इस वजह से। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, गॉट इट।
ठीक है, चलिए देखें। तो एक, हाँ, ओके, तो एक बार मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूँ, इस चीज को समझना बेटा, कि जैसे पीएच की वैल्यू जो है, ठीक है, पीएच, द वैल्यू ऑफ पीएच इज लेस देन 7, अगर ये 7 से कम है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, पीएच की वैल्यू, पीओएच की वैल्यू, क्योंकि दोनों का सम 14 होता है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी ना, अगर पीएच की वैल्यू लेस है तो पीओएच की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, और जब पीएच की वैल्यू लेस होती है तो वो एसिड होता है। तो हम यूं भी तो कह सकते हैं पीओएच की वैल्यू ग्रेटर होती है तो भी तो एसिड होता है, ठीक है। और सिमिलरली अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा हो तो हम लोग बेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब पीओएच क्या होना चाहिए, अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो पीओएच 7 से कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी कैसा हो जाएगा वो